Very good morning class. Welcome to the psychology classroom. So as usual, I ask to you all that I hope you all are fine and happy. So stay healthy and stay safe and keep your mind positive. Don't put any negative things into your mind. Work very hard. Make your timetable, make your time management, and do work accordingly. Make the notes, do more and more written work, take the help and guidance of your teachers. Okay, whenever you require, don't hesitate in asking any of the question. So students, be very attentive in each and every classroom. With this, I'm going to discuss you with today about psychology practical. Okay, as many of you have not attended this session, so I thought to make a video on this one so that you will be able to understand about the psychology practical. Children, as you all know, psychology is a practical subject. Okay, it is a practical subject, and this 70 marks is of theory and 30 marks is of practical. When we talk about the 30 marks, how the 30 marks are distributed? In the 30 marks, the 15 marks is for the practical. Okay, 10 marks for the written part, reporting जो आप करोगे लिखोगे, and 5 marks is for conduction जैसे आप करोगे. Rest of the 15 marks, 10 marks is on your practical file and 5 marks is of viva. So 5 marks is of viva, 10 marks is your practical file, and 15 is the practical examination, in which 10 marks is for reporting, means the things which you write down in the copy, and 5 marks is for the conduction, how you conduct the practical. Usually psychology practical we conduct on the subject. We take a person and that on that we conduct a practical. So in the examination also you all have to bring one subject with you so that you can do a practical on that one. Practical written, it is also like the theory, you get the 3 hours time. Similarly, in practical also you get the 3 hours time. In that 3 hours, you will report the practical, you will conduct the practical, as well as you will give the viva. Bringing the practical file is very mandatory during the examination. It is very important. Now coming to the practical, आपको करना क्या है? Today I am going to introduce you the first practical which you have to do, and that practical is based on learning. ये learning chapter पे based है. Learning chapter आप सभी ने पढ़ा है. It is chapter 6 in your book. In that you have learned, you have studied what is learning. आपने learning अच्छे से पढ़ा है कि learning क्या होती है. आपने ये भी पढ़ा है कि what are the types of learning. कितनी तरह के learning के types होते हैं. ठीक है, आपने लर्निंग के टाइप्स भी पढ़े हैं. जिसमें से आपका प्रैक्टिकल अभी वर्बल लर्निंग पे होना है. वर्बल लर्निंग, अ लर्निंग which have the use of words, symbols and all. तो वर्बल लर्निंग पे ही हमारा प्रैक्टिकल है. वर्बल लर्निंग की जब हम लोग बात करते हैं
तो आपने ये जाना है कि जिन चीज़ों को हम लोग समझ के पढ़ते हैं, the things which has the meaning, the thing which has the semantic learning, that will be retained in our mind for a longer period of time. वो हमारे माइंड में लंबे समय तक रहता है. ओके, फाइन. सो हमारा प्रैक्टिकल भी इसी पे है. तो हमारे प्रैक्टिकल की टाइटल क्या है ये जान लेते हैं. चिल्ड्रेन, मैं आप सभी को आई विल डिस्कस विद यू व्हाट विल बी द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आप प्रैक्टिकल्स लिखोगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाओगे विच विल बी ऑन दी वाइट शीट. वाइट शीट पे आप ये टाइटल लिखोगे. आपकी टाइटल है the meaningfulness of material, the meaningfulness of material has an impact on learning. This is your title, children. The meaningfulness of material has an impact on learning. Then we are discussing about the psychology practical. So in this regarding, I told you the topic, I told you the title. Title आपका क्या रहेगा? तो आपको मैंने प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि प्रैक्टिकल आपका है क्या. आपका प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड है, वर्बल लर्निंग पे बेस्ड है. पर्टिकुलरली in this practical you are seeing that, you are observing that those things which you learned semantically or by understanding their meaning, that will be have a better learning or that will retain in your memory for a longer period of time. कहने का मतलब ये है कि जब हम सिमेंटिक लर्निंग करते हैं या चीज़ों को जब हम लोग समझ के पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है और वो हमारे मेमोरी में भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहता है. तो बच्चों, हमारा प्रैक्टिकल भी यही है. आपके प्रैक्टिकल का टाइटल है मीनिंगफुलनेस ऑफ स्टडिंग मटेरियल हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन लर्निंग. इसका मतलब ही है कि जिन मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल, जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर वो मीनिंगफुल है, ठीक है, आप उसका कोई मीनिंग है और आपने उसको अगर समझा है तो उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा लर्निंग पे. ओके, so meaningfulness of studying material has an impact on learning. This is your practical, this is your experiment. Now इसमें आपको करना क्या है? आपको कुछ there was a list of words. Some words are meaningful and some words are non-meaningful. You can say that the nonsense syllable. Non-meaningful को हम लोग nonsense syllable भी कहते हैं और मीनिंगफुल को हम लोग सेंस सिलेबल कहते हैं. तो आपको करना क्या है बेटा? आप यू ऑल हैव द 15 वर्ड्स ऑफ मीनिंगफुल एंड 15 वर्ड्स ऑफ नॉन मीनिंगफुल. दे आर टोटल 30 वर्ड्स. इन 30 वर्ड्स के आपको एक कार्ड बना लेने हैं. ठीक है, स्क्वायर शेप में आप एक कार्ड बना लोगे और उस कार्ड पे आप हर एक वर्ड्स को नोट डाउन करोगे. ओके, now what you have to do, you have to call a subject. आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा. सब्जेक्ट would be the person जिस पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे. तो आप किसी एक पर्सन को ले लेंगे जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो आप उसको बुलाएंगे और आप प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे उस पर. तो सब्जेक्ट को बुलाते हैं. सब्जेक्ट से पहले रैपोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं. रैपोर्ट इस्टेब्लिश करने का मतलब है कि एक ट्रस्ट बिल्डअप करना, उससे उसको एक कंफर्ट जोन में रखना,
कि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील हो उसको, ठीक है, ठीक है, वो आपके साथ कंफर्ट फील करे, रिलैक्स फील करे और आपसे हर एक चीज मीन्स ऑलमोस्ट थिंग्स वो शेयर करे, ठीक है। तो रैपोर्ट में ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है। फिर आप सब्जेक्ट को बुलाते हो, रैपोर्ट इस्टेब्लिश करते हो। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द रैपोर्ट आप क्या करेंगे, आप उससे इंफॉर्मेशन लेंगे, डेटा लेंगे। कौन से डेटा लेंगे? डेमोग्राफिक डेटा, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और डेमोग्राफिक डेटा आप उससे लेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें आप लेंगे वो आप अपने फाइल में भी नोट डाउन करोगे, जिसमें आपकी हेडिंग होगी अबाउट द सब्जेक्ट। तो उसमें आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी? नेम, एज, यू शुड राइट इट डाउन, नेम, एज, जेंडर, educational qualification, number of members in the family, type of family, number of siblings, okay, place of the experiment, date and time of the experiment. तो ये सारी चीजें आप उसमें नोट डाउन करोगे अबाउट द सब्जेक्ट में, ठीक है। देन आपने सब्जेक्ट को बुलाया, सब्जेक्ट से रैपोर्ट इस्टेब्लिश किया, फिर सब्जेक्ट को आपने उससे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिया। अब आप सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन दोगे, ठीक है। योर नेक्स्ट, ये मैं पूरे अभी मैं रिटन पार्ट आपको नहीं बता रही बेटा। आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ द रिटन पार्ट, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रैक्टिकल, हाउ यू विल डू। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट, आप कैसे करोगे उस प्रैक्टिकल को, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके पास पहले 15 मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, 15 नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स, उनके आपने कार्ड्स बना लोगे, वो आपके पास होना चाहिए। ये आपका टूल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल फॉर यू टू कंडक्ट योर प्रैक्टिकल, इट इज़ अ काइंड ऑफ मटीरियल फॉर यू, टेस्टिंग मटीरियल फॉर योर प्रैक्टिकल। नाउ सब्जेक्ट को आपने बुलाया, अब आपको मैं प्रॉपर प्रोसीजर बता दूँ। प्रोसीजर आप क्या करोगे? यू कॉल द सब्जेक्ट, मेक देम सिट कंफर्टेबली, मेक अ रैपोर्ट विद द सब्जेक्ट, ask the demographic information, and after the demographic information you give the instruction। अब आप इंस्ट्रक्शन दोगे। इंस्ट्रक्शन में आप क्या देंगे? आप बोलेंगे सब्जेक्ट को कि right now I am going to show you some of the cards, and on that card some words were written. You have to see all the words, and at the last I give you a 2 minutes for writing all those words. So this is an instruction, children, which you give to your subject. आपने अपने सब्जेक्ट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? आप So students, did you understand कि आपको करना क्या है? You get a list of 15 words which are meaningful and 15 non-meaningful. You all have to make a card of that one. Now you call the subject. You make the subject to sit comfortably. Then you make a rapport with the subject. Then you take the demographic information. I already told to you what are the things are included under the demographic information. After taking the demographic information, you give instruction to the subject. What instruction you will give? You said to the subject that one by one I will show you the card for 10 seconds. आपको हर एक कार्ड 10 सेकेंड के लिए सब्जेक्ट को दिखाने हैं, यानी 15 कार्ड्स हैं। हर एक एवरी कार्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट मेरे सामने है, मैंने पहले नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के कार्ड लिए, मैंने वो सारे कार्ड सब्जेक्ट को एक एक कार्ड, सिंगल वन ईच कार्ड आई हैव शोन इट फॉर 10 सेकेंड। इसी तरह मैंने पूरे 15 कार्ड्स उसको शो कर दिए। नाउ आई विल गिव द सब्जेक्ट अ पेज, अ वाइट ब्लैंक शीट, जिसमें आई विल आस्क हिम टू राइट डाउन वॉट एवर द वर्ड्स द सब्जेक्ट हैज रिकॉर्ड। जो भी वर्ड सब्जेक्ट को याद हैं वो वो लिखेगा। तो दैट वॉज योर फर्स्ट ट्राई। इसी तरह आपको बच्चों you have to take all the tries until the subject recalled all the words.
कहने का मतलब ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो जब तक पूरे 15 वर्ड्स नहीं रिकॉल कर लेता, until that you have to take the trial. आपको ट्रायल लेते रहना है, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन क्या दोगे कि हम आपको 10 सेकेंड के लिए कार्ड्स दिखाएंगे, आपको उसे देखना है, यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व और उसे अपनी मेमोरी में स्टोर करना है। और फिर इसके बाद मैं आपको एक वाइट ब्लैंक शीट दूंगा जिसमें आप ये वर्ड्स को लिखोगे। तो ये दिस इज एन इंस्ट्रक्शन विच यू गिव टू योर सब्जेक्ट। और फिर अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट जो है काम करेगा। आपका क्या काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर फंक्शन एंड व्हाट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन। आपका क्या काम है, आपको ये याद रखना है, आपको सारे कार्ड्स उसको 10 सेकेंड के लिए दिखाने हैं और तब तक आपको मीन्स 15 कार्ड्स आपने दिखा दिए, फिर उसको आप एक लिस्ट दोगे वाइट ब्लैंक शीट जिसमें वो लिखेगा। हो सकता है फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रायल में मैंने नॉन मीनिंगफुल कार्ड्स दिखाए हैं बच्चों, ठीक है, पहले आप नॉन मीनिंगफुल कार्ड्स दिखाओगे। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने नॉन मीनिंगफुल कार्ड्स उठाए और सब्जेक्ट्स को दिखाना स्टार्ट किया। हो सकता है फर्स्ट ट्रायल में 15 वर्ड्स में से सब्जेक्ट सिर्फ ओनली 4 या 5 और 6 वर्ड्स बताए। तो फर्स्ट ट्रायल में कोई भी सब्जेक्ट पूरे वर्ड्स तो नहीं बता पाएगा और स्पेशली नॉन मीनिंगफुल तो नहीं। एक बार मीनिंगफुल के भी चांस हैं कि मीनिंगफुल वर्ड्स वो बता दे, बट दैट इज वेरी रेयर, बहुत रेयर चांस है, जरूरी नहीं है कि वो बता पाए। तो फर्स्ट ट्रायल में कभी मत समझना कि और ना ही ये सब्जेक्ट से भी एक्सपेक्ट करना कि वो फर्स्ट ट्रायल में ही सारे वर्ड्स बता दें। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो फिर अभी क्या है, आप फर्स्ट ट्रायल में जो भी आपका सब्जेक्ट बताएगा वो उसे नोट डाउन करेगा। नाउ फिर आप सेकेंड ट्रायल लोगे। ट्रायल कितने लेने हैं ये कोई फिक्स नहीं है। हाउ मेनी ट्रायल्स यू हैव टू टेक, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज ओनली अप टू द सब्जेक्ट कि वो कितने ट्रायल्स में सारे वर्ड्स रिकॉल कर लेता है। हो सकता है वो 2 ट्रायल्स में ही कर ले। इट मे बी पॉसिबल दैट द सब्जेक्ट विल डू इट इन 3 ट्रायल्स, द सब्जेक्ट विल डू इन 5 ट्रायल्स, उसको 5 ट्रायल्स लग जाए, उसको 6 लग जाए मे बी। तो इट्स नॉट फिक्स एनीथिंग कि व्हाट विल बी देयर। सिमिलरली जैसे ही आप नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के कर लिया, आपने नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स का एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया, अब आप मीनिंगफुल वर्ड्स के कार्ड उठाओगे। उसका भी सेम पैटर्न है, 10 सेकेंड्स के लिए आप कार्ड शो करोगे और 1 मिनट दोगे सब्जेक्ट को नोट डाउन करने के लिए। मीन्स 10 सेकेंड के लिए 10 सेकेंड आपने फर्स्ट कार्ड दिखाया, फिर सेकेंड कार्ड 10 सेकेंड, थर्ड, उसी तरह आपने सिमिलरली 15 कार्ड्स आपने ऐसे दिखा दिए। नाउ यू पुट ऑल द कार्ड्स असाइड and give a blank sheet to the person or the subject and give him or her 1 minute. आप 1 मिनट पूरा दोगे उसे लिखने के लिए। हड़बड़ाएंगे नहीं आप ये नहीं हो रहा कि you made the subject a very hurry or very haphazard manner. It's not like that. आप उसको पूरा 1 मिनट दोगे, पूरा प्रॉपर टाइम दोगे कि ठीक है आप आराम से चीज़ों को करिए। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि आपको प्रैक्टिकल करना क्या है और क्या इंस्ट्रक्शन आपको अपने सब्जेक्ट को देना है। इस प्रैक्टिकल से हम लोग ये देख रहे हैं, फिर आप ये देखोगे जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, और जब आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो आप ये देखोगे कि आपके सब्जेक्ट ने मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए ट्रायल्स कम लिए होंगे और नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए ट्रायल्स ज़्यादा लिए होंगे। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव करोगे कि मीनिंगफुल वर्ड्स आर हैव अ मोर इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग एंड मीनिंगफुल वर्ड्स आर लर्न मोर ईजली इन कंपैरिजन टू द नॉन मीनिंगफुल वर्ड।
जिन चीज़ों को हम लोग समझ के पढ़ते हैं वो हमें जल्दी समझ आता है और जल्दी याद होता है. दे आर वेरी easy to grasp, they are very easy to understand in comparison to the those things which we don't understand. अगर हम लोग समझ के पढ़ते हैं तो वो हमें समझ आता है, जो चीज़ें हम लोग समझ के नहीं पढ़ते हैं वो हमें समझ नहीं आता और वो हमारे मेमोरी, हमारे स्टोरेज में भी नहीं रहता. सो आई होप आपको अपनी प्रैक्टिकल समझ में आई. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल चिल्ड्रन. डू इट. यू ऑल्सो फाइंड इट इंटरेस्टिंग एज वेल एज योर सब्जेक्ट ऑल्सो. आप अपने प्रैक्टिकल से ये प्रूव करोगे कि मीनिंगफुल थिंग्स का इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल. आप करेंगे कैसे और आप करवाएंगे कैसे सब्जेक्ट से, ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. नाउ अब आते हैं रिटन पार्ट में. रिटन पार्ट यानी अबाउट योर फाइल, कैसे आप लिखोगे. एक प्रॉपर मेथड होता है जिसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. सबसे पहले आपका आएगा, फर्स्ट वन इज टाइटल. ठीक है, टाइटल आएगा. सेकेंड आपका आएगा, टाइटल का एक पेज होगा, सेपरेट पेज आप बनाओगे. फर्स्ट जो है वाइट शीट पे आप बनाओगे, टाइटल उसमें लिखोगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट आप रूल पेज में आपका सबसे पहला हेडिंग रहेगा. नेक्स्ट पेज पे आपकी हेडिंग रहेगी प्रॉब्लम और एम. आर यू एबल टू सी? ओके. Third, I can say that the second heading. Okay, I am writing it again. तो आपको ये समझ में आ गया बेटा कि टाइटल का आपका एक सेपरेट पेज रहेगा. देन आपके नेक्स्ट पेज में जहाँ रूल पेज रहेगा जिसमें आपका सबसे पहला हेडिंग रहेगा प्रॉब्लम और एम. ओके, सेकेंड हेडिंग आपका रहेगा प्रॉब्लम और एम के बाद इंट्रोडक्शन. ओके, क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद आपका रहेगा हाइपोथेसिस. क्या है? हाइपोथेसिस. ओके, देन है आपका वेरिएबल्स. ठीक है, क्या है? वेरिएबल्स. ओके, देन है आपका अबाउट द सब्जेक्ट. ठीक है, आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अबाउट द सब्जेक्ट. तो फिर से बता देते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम और एम, ये मैं हेडिंग से बता रही हूँ. व्हाट यू राइट इनसाइड द हेडिंग वो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो ये हेडिंग पहले आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. प्रॉब्लम, एम, इंट्रोडक्शन, हाइपोथेसिस, वेरिएबल, अबाउट द सब्जेक्ट. चलिए, आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन. नाउ अबाउट द सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे मटेरियल्स रिक्वायर्ड. ये आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, मटेरियल्स रिक्वायर्ड. ठीक है, इसके बाद आपका हेडिंग है मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद आपका हेडिंग है प्रोसीजर. ये आपका हेडिंग है प्रोसीजर. ठीक है, ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर. प्रोसीजर में भी कुछ सब हेडिंग्स आएंगे जिसमें आएगा आपका
सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन, इट्स इम्पॉर्टेंट। सॉरी, इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, प्रोसीजर में सबसे पहले आएगा रैपोर्ट फॉर्मेशन। ओके, योर हेडिंग विल बी रैपोर्ट फॉर्मेशन। रैपोर्ट फॉर्मेशन, पहले प्रॉब्लम, एम, दोनों एक चीजें हैं, फिर इंट्रोडक्शन, देन हाइपोथेसिस, देन वेरिएबल, then about the subject, then material required, and then is the procedure. Procedure में सबसे सब हेडिंग आपका है रैपोर्ट फॉर्मेशन। रैपोर्ट फॉर्मेशन के बाद है आपका इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओके। इंस्ट्रक्शन के बाद है आपका डिजाइन। ये सारे प्रोसीजर में सब हेडिंग्स है, ठीक है। डिजाइन, डिजाइन के बाद आएगा आपका प्रिकॉशन, क्या आएगा, प्रिकॉशन। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर में है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन, रैपोर्ट फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, डिजाइन, प्रिकॉशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड इट डाउन, सो आई एम इरेजिंग इट। अब प्रोसीजर के बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग यहाँ खत्म हो गया। कहाँ पे खत्म हुआ, प्रिकॉशन पे, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग स्कोरिंग, स्कोरिंग, फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है रिजल्ट, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इंटरप्रिटेशन, ठीक है, स्कोरिंग, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन। फिर यहाँ पे आपका आएगा इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बताते हैं हम आपको। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आप जैसे ही प्रैक्टिकल ओवर कर लोगे सब्जेक्ट के साथ, और फिर जब आप सब्जेक्ट को जाने लगोगे, मीन सब्जेक्ट जब जाने लगेगा तो सब्जेक्ट से हम इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट रखते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव वर्ड बना है इंट्रोस्पेक्शन से, जिसमें मतलब पर्सन यानी सब्जेक्ट जो है टेल हिमसेल्फ और हरसेल्फ अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में खुद बताता है। तो बिफोर लीविंग टू द एक्सपेरिमेंट यू शुड आस्क टू द सब्जेक्ट दैट हाउ द सब्जेक्ट फील ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट आर द थिंग्स द सब्जेक्ट लाइक्स और डिसलाइक अबाउट द एक्सपेरिमेंट। बेसिकली यू आस्क फॉर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द सब्जेक्ट, आप उससे उसके एक्सपीरियंसेस पूछोगे एंड दैट यू राइट डाउन इन द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव के बाद आएगा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपका रहेगा, यानी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट आपने क्या ऑब्जर्व किया सब्जेक्ट में, कि सब्जेक्ट कैसे कर रहा था, हाउ व्हाट आर द वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नॉन वर्बल मैसेजेस भी सब्जेक्ट्स देते हैं, जैसे कि हाउ द सब्जेक्ट इज सिटिंग, या कोई आपको ऐसा लगा कि वो घबरा रहा था या कुछ भी ऐसा चीज, तो वो सारी चीजें आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में लिखोगे। ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे फिर लास्ट दिन रहेगा कंक्लूजन। आप अपना कंक्लूजन करोगे कि आपने क्या कंक्लूड किया प्रैक्टिकल से,
एंड कंक्लूजन के बाद आपका रहेगा रेफरेंस. आई एम नॉट राइटिंग इट हेयर बट यू शुड राइट डाउन इट हेयर कि कंक्लूजन के बाद लास्ट रहेगा आपका रेफरेंस, या आप बिब्लियोग्राफी भी कह सकते हो. तो रेफरेंस पे आपका प्रैक्टिकल एंड होता है. तो मैंने आज आपको ये बताया बेटा कि आपको प्रैक्टिकल के कौन से टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, प्रैक्टिकल आपको एडमिनिस्टर कैसे करना है, what are the instruction you have to give to the subject, what are the procedure which you have to follow with the subject. Basically practical part I discussed with you. Theoretical I had not discussed very much, but almost the headings I told to you कि headings क्या होंगी. तो basically you all have to follow this format. When you go through the book में आपको बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स मिलेंगे. तो don't go completely with the book. That's why I had given you here the format. And this format apply in everything. Means आप आगे भी जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, whether you do in 11th or either you do it in 12th, अगर आप एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं, और अदर like in your लाइफ टाइम ऑल्सो when you do the graduation, तो भी आप यही पैटर्न फॉलो होता है. सो आई होप you all understand about the practical part. Now in the next video I will discuss you what you will write down. So thank you so much for observing this one, and I hope you all have written it down. Thank you so much again.